So, Bismillahirrahmanirrahim. So, today we have the second week lecture. So, first week we have completed, and today we will start the second week, and our chapter will be chapter 2. तो आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं पिछले लेक्चर में से ना. Do you have any question, or did you understand everything we discussed in the last week and the first week? कोई क्वेश्चन है आपको? Okay, sir. No, sir. नो सर. तो सारा समझ में आ गया था जो हमने डिस्कस किया था लास्ट वीक जो है उसमें चैप्टर 1 में. No, sir. अगर No, दोबारा sir. रिव्यू करवा दें तो बेहतर है. दोबारा अगर उसको रिव्यू करवा दें सर तो बेहतर है. अच्छा. So this is our chapter 1 in which we discuss the basics principles of the statics, okay, and we discuss the fundamentals of the units, what is statics, okay, and how what are the branches of statics, what is mechanics, okay. So Excuse me, can I interrupt? Good morning, right? Yeah, good morning. How are you, sir? Sorry for yeah, the disturbance because today some issue with the electricity. So if we can continue similarly, so if there is a start over, so please don't mind that. Okay, sir? okay, no problem. Okay, so this is just I am going through the slides. If you have any question, you can ask me. So this is just introduction of the statics, okay, and about the mechanics, and very basic things we have covered in the chapter 1, right? And then we have the unit systems. We could discuss about the international system and the FPS or US customary unit system, right? सर then एक्सक्यूज मी, सॉरी yes, फॉर yes. इंटरप्टिंग सर. इंग्लिश में थोड़ा अंडरस्टैंड करने में थोड़ा डिफिकल्टी हो रही है, तो आप उर्दू में अगर समझाते तो बेहतर रहेगा. ओके. सो हमने जो ना जो सिस्टम यूनिट्स से यूज करते हैं ना उसमें मेजरमेंट में, तो दो तरह के यूनिट्स होते हैं ना. एक इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स होते हैं और दूसरे एफपीएस सिस्टम में, वो हमने डिस्कस किया था. और स्टैटिक की जो बेसिक डेफिनेशन है वो हमने डिस्कस की थी. व्हाट इज स्टैटिक्स, स्टैटिक्स क्या होती है, ठीक है ना. व्हाट इज स्टैटिक? सो वी डिस्कस द मैकेनिक्स, ओके. व्हाट इज मैकेनिक्स? So mechanics is a branch of science which deals with different forces and okay, different loads. So in which we have three branches. One is rigid bodies, deformable bodies, and fluids. And now we are dealing with the rigid bodies, like in the structures or buildings. जो है ना वो स्टैटिक्स और रिजिड बॉडीज होते हैं ना. तो जो रिजिड बॉडीज हैं उसकी फर्दर दो ब्रांचेस हैं, एक स्टैटिक है, दूसरा डायनामिक है. Static means the structure remain like constant, okay. जो बिल्डिंग है वो नहीं करती ना, इट्स रिमेन कांस्टेंट. देयर इज नो एनी मोशन, उसमें कोई डायनामिक्स या टाइम या वो उसमें नहीं है. डायनामिक्स में इट डिपेंड्स अपॉन द टाइम, ओके. इट्स लाइक स्पीड, वेलोसिटी और मोशन, सब डायनामिक्स, ओके. सो ये हमने शुरू में जो इसकी बेसिक मैकेनिक्स की जो डेफिनेशन थी वो हमने डिस्कस की थी. फिर यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है ना, जो है इसको कैसे, जो मेजरमेंट के यूनिट्स होते हैं, मास, टाइम, फोर्स, लेंथ, वो हमने डिस्कस किया था, ठीक है. देन some calculation for the unit conversions we have done. So जो यूनिट को कैसे कन्वर्ट करते हैं, ओके, and how you can make results into the significant figures. नॉर्मली वी हैव द रिजल्ट्स, जो कैलकुलेशंस होती हैं उसके रिजल्ट्स वगैरह होते हैं ना, तो उसमें डिफरेंट वैल्यूज आ जाती हैं. तो इसको कितने नंबर तक आप जो है ना वो कर सकते हैं. इस तरह इन दिस एग्जांपल वी हैव द न्यूटन, so we can convert it into the kilonewtons, so till the 3 digits, okay.
Normally we use the 3 digits round off figures. ये हमने डिस्कस किया था, ठीक है. So this is all about the chapter 1. ये जो slides हैं all are given in the textbook, okay. So you can if you have any question or you cannot understand the slides, so आप book में जा सकते हैं, ठीक है. You can directly go to the book. आप सबके पास बुक तो होगा, बुक आपने डाउनलोड कर लिया है सबने? यस सर. ठीक है ना, सारे चैप्टर्स हैं आपके पास फ्रॉम 1 to 11? यस सर. ठीक है ना. तो ये जो है ना चैप्टर 1 जो है ना हमारा, ये चैप्टर 1 है. इसमें से मैं गो थ्रू कर लेता हूँ बुक में से भी. ये चैप्टर 1 है, ठीक है. तो जितना भी हमने डिस्कस किया था ना स्लाइड्स में, ये चैप्टर 1 में मेंशन है, ठीक है ना. ऑल द फिगर्स, ऑल द एग्जांपल्स जो है ना चैप्टर 1 में. अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही तो आप डायरेक्टली यू कैन गो टू द बुक. बुक में जाके आप फर्दर इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है. So this is all about chapter 1, okay. So today we will start the chapter 2. Clear? So chapter 2 सर ये बुक हमें पीडीएफ में सेंड कर दें आप? ये ऑलरेडी जो है ना अवेलेबल है क्लासरूम, गूगल क्लासरूम में. आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है. ठीक है सर. ओके सर. और जो मैंने लिंक जो प्रोवाइड की है ना वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं. जो लेक्चर की लिंक है ना उसमें से डाउनलोड ऑप्शन आ रहा होगा, उसमें सारी स्लाइड्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है. जी जी जी. ओके. So today we talk about the chapter 2, okay. Chapter 2 is the force vector. Force vector is a force, right, like a force. We apply the forces, and then force is normally we use the, how we use some arrow like this is a force, right. Normally we use F force, and we use this arrow, okay. So in our engineering calculations or in all the problems we use it like arrow as a force, right. जो भी आपके जो स्ट्रक्चर्स होंगे, जिस तरह ये क्रेन आपको नजर आ रही है, ठीक है ना, ये जो क्रेन है. सो वी कैन मेक अ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस एंड वी कैन कन्वर्ट इनटू द फोर्सेस. वो जो आपको पाइप्स वगैरह ये नजर आ रहे हैं ना, इसको हम फोर्स में कन्वर्ट करके फिर कैलकुलेशन करते हैं. तो फोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके. इट्स अ वेक्टर. Then we will discuss the small scalars and vectors, okay. You already study some thing about the scalars and vectors, and we will just revise it. And vector operation means how we can add the forces, force vector, okay. ये plus होगा, okay. If it's minus, okay, or if it's have some angle, how can we make addition or subtraction of the force vector. And also the addition of the system of the coplanar forces. What is coplanar forces? सर उर्दू में बताइए. हाँ हाँ, कोप्लेनर फोर्सेस क्या होते हैं? हाँ हाँ, व्हाट इज कोप्लेनर? कोप्लेनर मींस योर पेपर. जो आपका जो पेज है ना, जो पेपर है ना, जो आप उस पे ड्रा कर सकते हैं ना, इट्स कॉल्ड अ कोप्लेनर, ओके. जिस तरह आपका जो पेज है उसमें एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, ठीक है ना, तो इसको हम कोप्लेनर कहते हैं, ओके. जो आप पेज पे राइट कर सकते हैं, दीज आर द कोप्लेनर. तो फोर्सेस वी जो आप ड्रा कर सकते हैं पेज में या वो उसमें बुक में पेपर पे, वो कोप्लेनर फोर्सेस कहलाती है, ठीक है. So we can discuss about the force vector operation and addition of the coplanar forces, okay. And जो आज हम डिस्कस करेंगे, how we can add, resolve means add or subtract the vector, okay. 2D means vector in x and y axis, okay. What is 2D? 2 dimension. Two dimensions. Yes sir.
What are two dimensions? XY axis. Yeah, X and Y x-axis and axis. y-axis. Okay, this is two dimension, right? This is two dimension, okay? Then we can add the two dimension vectors using the Cartesian vector notation. What is the Cartesian vector notation? What is Cartesian vector notation? No idea, sir. ठीक है ना, आपके पास 2D है ना, okay? 2D Yes, sir. and 3D. 3D. This is x-axis and ये y-axis है और ये z-axis है, right? Z axis. Z Yes. axis. If X, I Y, Z. can write it in iota, okay, y and j, okay, and z and k. Yes. Z, K. So this is called the No. Cartesian, okay? Cartesian. Cartesian vector notation, okay? Notation means I, J, and K, okay? And 2D Yes, sir. means X, Y, and Z, okay? So this is what we Two discussed here. dimensions. X and Yeah, Y. in 3 dimensions or 2 dimensions in I, J, K form, it's called the Cartesian, okay? Then we discuss जो क्लास में जो फर्दर स्लाइड्स के अंदर जो हमने डिस्कस करना है ना, वो उसमें आपकी जो है सम एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना, और सम जो है फोर्सेस को किस तरह ऐड करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ. व्हाट इज पैरेललोग्राम लॉ? व्हाट इज पैरेललोग्राम? No idea, sir. सर जो दो एंगल बराबर हो, This is स्ट्रेट हो like और बराबर हो बिल्कुल. like this is what is this? This is what? सर जो बराबर ना हो लाइंस. Opposite हो गया. हाँ, Opposite हो गया. ये पैरेलल लाइन से ना, ये पैरेलल लाइन से, ठीक है ना. एक तो होता Yes, है sir. आपका जो स्क्वायर होता है या रेक्टेंगल होता है ना, इसमें सारी चीजें जो है ना परपेंडिकुलर है, लाइक, ठीक है ना. पैरेललोग्राम में जो है ना, ये जो है ना वो आपके पैरेलल होते हैं, मगर इसमें दो एंगल्स जो है ना वो होते हैं, ठीक है ना, परपेंडिकुलर नहीं होते. दिस इज कॉल्ड द पैरेललोग्राम, ओके. एंड देन resolution of vectors using the Cartesian vector notation, okay. So resolution means how can we add and divide add the vectors, okay, in I, J, and K form, okay. How can we add using the Cartesian vector notation? Some examples and some more discussion we will do it, okay. Okay, so you already know the scalar, right? What is scalar? Mass. Sir, mass. Mass. Yes. Which one of the following is a scalar quantity? So mass is a scalar quantity, right? Yes, sir. Yes. So C is correct, okay. So the Yes, scalar sir. quantity, we can have a mass, and mass doesn't have any direction, okay. Yeah. And this one, Oh, vector yeah. addition, you have to use what? The parallelogram. The parallelogram. Yeah, the parallelogram, okay. D. D is the D, correct. So this Yes, is sir. vector, okay, and then this is a vector, okay, then this is a vector, and then this is a vector, okay, and then this is a vector, okay, then this is a vector, and then this is a vector, okay. So we use the parallelogram to add the vectors, okay. Like this is f, maybe 1f, this is 2f, okay, and then 3f or 4, whatever is it, the magnitude we add it, okay. Yes, sir. So addition of vector addition, okay, so we have the vectors. How many vectors in this figure?
This is F1, F2, F3. Okay. So how many vectors? 2 vector. 1, 2, and 3 vector. This Three. is F1. Yes. This is F1, Three vectors. F2, F2, and F3. Okay. And this is your hook. Yes. Okay. And then 3 dimension. Sir, it is a 3 dimensions. yes, it's a 3 dimension. So this is your hook. Okay. And this is your, what is this? Forces, sir. Forces. The forces are this is the chain. Okay. The cable holding the loads. Okay. And this is a hook. Okay. And then it will generate, this is the origin. Okay. From origin these vectors are connected with the cables. Cables से connected है ना, जो load ले रहे हैं, ठीक है ना. So we have 3 vectors here, 3 vectors, and okay. So if we add the 3 vectors, okay, so that will be the, Hello, sir. yes, yes. Sir, what is सर उर्दू में गलायो. What is? You asked some question. forces? What is Mean by concurrent forces? concurrent forces? Where is the concurrent forces? This one? ऊपर लिखा हुआ है, there are 3 concurrent forces. So there are 3 concurrent forces. sir, Concurrent on- forces are forces acting in the cables, okay, on the where you hold the loads. जहाँ पे आपका लोड जो है ना उसको होल्ड कर रही है ना cables. So these are the concurrent forces, okay. मतलब सर सिंगल पॉइंट पे जो हाँ, ये सिंगल पॉइंट पे जो है ना, एक ही पॉइंट पे जो है ना 3 फोर्सेस ये होल्ड लोड करेंगे ना हुक पे, ओके. तो ये F1 है, F2 है, F3 है, तो तीनों का जो लोड है ये हुक बर्दाश्त कर रहा है ना. तो दिस इज द ओरिजिन ऑफ द फोर्सेस, ओके. This is the forces acting on the hook due to the chain, okay. So F1, F2, F3 are the concurrent forces, okay. And what is FR? Force. FR. Force. F is force. What is R? इनसे दो. फिर किस लिए? resultant forces, I think. Yes, resultant forces. If R is for resultant, okay. Resultant forces means Addition of forces yeah, F1 plus F2 plus F2 plus F3. F3, right? F3. So R3 Yeah, forces And so on. and so on. What? Okay. So these are the resultant forces, okay. Concurrent So if forces, we- sir. Yes. If we add F1 plus Yes. F2, this is the resultant force for F1 and F2, right? And this is F3, okay. So then we can add the parallelogram law to add the forces, all the 3 forces, okay. So the 3 concurrent forces are F1 and F2 and F3, right? F1, Yes, sir. F2 and F3, okay. Yes, sir. So these forces are supported by this hook, okay. So hook is a very strong hook, जो है ना वो strong होगा तो ये support को बर्दाश्त कर सकेगा ना. अगर hook में इतनी ताकत नहीं होगी then it will fail. It will not support the loads, okay. So hook is supporting the 3 forces, okay. सर उर्दू में गलायो. हम रिजल्टेंट फोर्स क्यों निकालते हैं इसको? हाँ, तो ये जो सपोर्ट है ना जो आपकी ये वो हुक जो है ना बर्दाश्त कर रहा है ना तीनों फोर्सेस, ओके. तो हुक की जो हमने जो हुक डिजाइन करेंगे ना, हुक की जो कैपेसिटी होगी वो इन 3 फोर्सेस से ज्यादा होगी, ठीक है ना, तभी ये बर्दाश्त कर पाएगा, ओके. सो हुक शुड बी ये इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि तीनों फोर्सेस को जो है ना वो बर्दाश्त कर सके, ओके. सो द टोटल फोर्सेस एक्टिंग ऑन हुक इज द रिजल्टेंट ऑफ 3 चेन्स, ओके. जो इसकी तीनों जो इसमें चेन में जो फोर्सेस है ना वो इसके हुक के जो फोर्स के बराबर होगी, ठीक है. सो द रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स विल बी द हुक फोर्स. तो आपकी जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो हुक की जो है ना वो फोर्स होगी, ठीक है.
So what is scalar and what is vectors? Sir, those quantity which have magnitude but no direction is called scalar, and those quantity which have magnitude as well as direction is called vector. Good. Yes, good. So if it's a magnitude, positive or negative, it's a scalar, okay? If it's a magnitude and direction, it is a vector, okay? And जो है mass and volume वो scalar हैं, ठीक है? और force and velocity, they are vectors, right? Hello. So we can add the scalar with the simple arithmetics. What is simple arithmetics? Simple arithmetics क्या है? Addition, No idea, sir. subtraction, Addition, No idea, subtraction, sir. multiplication. Addition. Yeah, plus, minus, 1 plus 2, 1 plus 3, 1 minus 2, it's a simple arithmetic, right? So we can Yes, sir. add the scalar 5 kilogram plus 8 kilogram, okay? We can add, it's a simple arithmetic. 5 plus 8 is a simple arithmetic, like 13, okay? And then, but vectors में क्या करेंगे? We need to make a parallelogram law, okay? तो उसको जो है ना उसको ज्योमेट्री वगैरह बनाएंगे, उसकी फोर्सेस की उसको ऐड करेंगे, उसको हम जो है ना वेक्टर में वो करेंगे। इस तरह प्लस सिंपल अरिथमेटिक हम यूज नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। ये जो स्केलर जो है ना उसको हमने जो नोटेशंस होती है ना नॉर्मली उसमें सिंपल विदाउट बोल्ड हम यूज करते हैं, ठीक है ना। जो वेक्टर्स होते हैं ना नॉर्मली हम बोल्ड फॉन्ट यूज करते हैं उसमें, ठीक है। तो Yes, sir. इसको इस तरह हम नोटेशन यूज करेंगे। Okay, this is a vectors, okay, and this is a Okay, sir. vector, this is a 2a vector, okay. ये a, this is a force, okay, and this is what is a 2a force. This is a force, okay. So double of a, okay, 2a, okay. अगर 2a में से minus a करेंगे तो ये आपका ये minus a हो जाएगा इसमें से, ठीक है ना। और minus 5 करेंगे तो ये आधा हो जाएगा, आधी force हो जाएगी, ठीक है ना। तो जिसको इस तरह भी हम वेक्टर्स को कर सकते हैं। डायरेक्शन शो कर रही है। जी जी बोलें, क्या कह रहे हैं? अरे माइनस साइन डायरेक्शन शो कर रही है। हाँ, माइनस डायरेक्शन शो कर रही है। माइनस मीन्स अपोजिट, ओके। डायरेक्शन शो कर रही है और इसको स्केलर से माइनस कर रहे हैं ना, ठीक है ना। -5 मीन्स सर ये ऑपोजिट वेक्टर है ना, ये हाँ, ऑपोजिट अपोजिट, वेक्टर्स माइनस हैं। मीन्स अपोजिट डायरेक्शन, प्लस मीन्स पॉजिटिव डायरेक्शन, ओके। ओके सर, ओके। ये दिस इज अ पॉजिटिव, राइट, एंड दिस इज अ नेगेटिव, Okay, Right. Okay, sir. Okay. okay. Okay, sir. And this is maybe 1f, okay, positive. This is 1f negative, okay, okay. And if you want make a 2f, maybe this is 2f, double of 1, okay. Hello. And if you have minus 2f, this is minus 2f, right, okay. So जिस जो इसकी जो लेंथ है ना वो आप इसको मेजर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड, ओके। सर सर तो जी जी बोले, क्या कह रहे हैं? हेलो सर, ये अरिथमेटिक रूल है ना, ये जो मालूम कर हाँ, रहे ये हैं अरिथमेटिक, हाँ, इसको हम अरिथमेटिक में कर सकते हैं ना, ठीक है। ओके, सो नाउ वी हैव टू वेक्टर्स, ओके। दिस इज ए वेक्टर, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है ना। ए फोर्स है और ये बी फोर्स है, ठीक है। तो इसको हम कैसे ऐड करेंगे, इसका रिजल्टेंट हम कैसे ड्रा करेंगे? ऐड करके हाँ, ऐड करके F1 प्लस F1 F हाँ, ए प्लस बी करेंगे ना, ठीक है। जिस तरह रिजल्टेंट जो है ना ए प्लस बी करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा, ठीक है ना। मगर इसको ग्राफिकली कैसे ड्रा करेंगे? पैरेललोग्राम ला, ओके। तो ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, ठीक है ना। तो आपको बी के जो है ना पैरेलल में एक लाइन ड्रा करनी है, एक लाइन जो ना ए के पैरेलल ड्रा करनी है, ठीक है। और इसको जो ना इससे मिलाना है तो ये आपका रिजल्टेंट आ जाएगा, ठीक है। दिस इज योर रिजल्टेंट हियर। So this is called the parallelogram law, and this is a plus b. Okay, R is the resultant. ठीक है. So this is ये method भी है parallelogram law.
other method also triangular method, okay? इसमें भी जो है ना आप ए वेक्टर इसमें ड्रा करेंगे, फिर बी वेक्टर करेंगे, ठीक है? हमेशा हम जो है ना ये इसमें हेड कौन सा है, टेल कौन सा है? दिस इज हेड, ओके? तो ये जो है ना टेल है, ठीक है ना? तो हम जब वेक्टर ऐड करते हैं ना, हेड टू टेल करते हैं, हेड है ना तो उसको टेल से करेंगे, ठीक है ना? फिर इसको ऐड करेंगे और फिर इसको जो मिलाएंगे, दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स, ओके? सो आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ओके? इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं, इसको इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है? Sir, please repeat this all. Parallelogram and triangle method. No, sir. Okay, so parallelogram law, if we add the two vectors, okay, together, so we can A and B. so we have two methods to add the vectors, okay? One is parallelogram law, other is the triangular law, okay? Both are the same, okay? So you can apply any one, okay? So here we have A and B, so we can draw the parallelogram here, okay? And then we can add the resultant here, okay? In the triangular law, we can add the head and tail, okay? Tip to tail, okay? Then we can draw the resultant by दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है? ये टिप टू टेल कौन सा ये मेथड ये समझाइएगा दोबारा? हेड टू टेल जो है ना आपका ट्रायंगुलर मेथड है, ट्रायंगल मेथड है ना, ठीक है? Yes, sir. हेड एंड दिस इज अ टेल. हेड को टेल से करेंगे, देन यू हैव द रिजल्टेंट हियर, ओके? स्ट्रक्चर क्या है फिर? जी क्या कह रहे हैं? Okay, so then how can we resolve the vectors? Resolve means components. To break. सर वेक्टर को ब्रेक करना है. To break. लिख रहा है. To break, sir. We start with yeah, to break the force, right? To break the force into components, okay? Yes, We sir. have the Okay, force sir. here, okay? So we can make a x component and y component, okay? U and V are the x and y components, okay? So Okay, sir. if we have this resultant force here, ये फोर्स है ना हमारी, ओके? सो इसको इफ वी कंपोनेंट में इफ यू कंपोनेंट में हम ब्रेक करेंगे ना, ओके? सो इसको इफ वी कंपोनेंट में इफ यू कंपोनेंट में हम ब्रेक करेंगे ना, तो ये हमारे पास एक्स एंड वाई कंपोनेंट आ जाएगा, यू एंड वी कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक है ना? इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी, ठीक है? So this is our resultant force. Then this is the x component, and this is the y component. The u and v components. Okay. So this is the same opposite. जो लास्ट हमने किया था ना, तो उसको इनको जो है ना ऐड किया था ना रिजल्टेंट फोर्स में, ये हमने फिर अपोजिट करेंगे ना, फोर्स को फिर डिवाइड कर सकते हैं उसमें कंपोनेंट्स में, ठीक है? ये जो ना उसके अपोजिट में है, ओके? देन वी हैव द, ये जो हमारे पास फोर्स है इसको एक्स कंपोनेंट में और वाई कंपोनेंट में हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? अगर कार्टेशियन वेक्टर में लेना है तो आपने आई और जे में इसको लिख सकते हैं, ठीक है? So we resolve the vectors into component using the x and y axis coordinate system. What is coordinate system? Coordinate. What is coordinate? सर कोऑर्डिनेट x और y को हम रिजॉल्व कर देते हैं. Yeah, उनके coordinate. component Yeah, this is like we have the axis here, x, y, and z. Okay, x, y, and z. So and this is z the origin. Here, the origin we have. What are the coordinates? We have the 0, 0, 0 coordinates. Okay. So x is 0, y is 0, z is 0 here. Okay. If we go in this direction, if Yes, x sir. is 5 meter, okay, this is 3, and this is 6. Okay.
So we can write in x-axis is 5, y 0, 0, 0. Okay. If we write in y, then it will be 0, 6, 0. ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, कोऑर्डिनेट्स है इसके, ठीक है ना। और z में लिखना हो तो 0, 0 और 3 करेंगे, ठीक है ना। सो दिस इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके। सो जो आपका जो फोर्स है उसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में जो है ना हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। जो डायरेक्शन है वो हेलो बेस्ड ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस होगा, ठीक है। एंड वी हैव द यूनिट वेक्टर्स आई एंड जे व्हिच इज सर एक्स कुछ एंड वाई। ओके हेलो जी जी। हेलो। सर वन क्वेश्चन सर इसे रिपीट तो कर आप इसे बताएं कौन रिपीट सा तो क्वेश्चन कीजिएगा है। ये समझ नहीं सर इसे रिपीट तो कीजिएगा ये कोऑर्डिनेट आप सर्वे कोर्स पढ़ रहे हैं ना, सर्वे का कोर्स, ठीक है ना। सर रिपीट सर्वे कीजिए, कोऑर्डिनेट वगैरह जो आप वो लेते सर हैं, इसे ठीक है। रिपीट कीजिएगा एक बार। ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये थोड़ा इनको रिपीट कर दें। कुछ ठीक भी है ठीक है। बताएं 0 सर। 0 0 और 0 0 1 और 0 0 3 वाला। सर इसे ओके उर्दू में सो इफ बताइएगा। ये है ना हमारे पास कोऑर्डिनेट्स में एक्स एक्स ये एक्सिस है ना, 3D है ये, एक्स वाई एंड जेड। ओके। तो इसकी जो ओरिजिन है हमारे पास, इसमें कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमारे, 0, 0 एंड 0, ठीक है ना। जीरो जीरो। ये यस सर। ओरिजिन पे कोऑर्डिनेट्स हमारे 0 होंगे ना, एक्स वाई जेड, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स जो यस आपकी सर। जो लेंथ है, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस में ये, ठीक है ना, अगर ये जो है ना आपकी 5 है, इसकी लेंथ है 5 जो है न्यूटन और जो भी फोर्स है, ठीक है ना। तो इसका जो एक्स में ये जो आपका कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा, 5, 0 एंड 0, ठीक है। बिकॉज वाई 0, यहाँ पे एक्स में वाई 0 है ना आपका, और जेड भी 0 है, ठीक है ना। तो ये आपके कोऑर्डिनेट है इन एक्स डायरेक्शन। ओके। समझ में आ रहा है। यस सर कुछ कुछ। ओके सर यस ठीक है। सर ओरिजिन भी आपका 0 है, ठीक है ना। अगर वाई डायरेक्शन में जाएंगे तो आपका जो वाई जो कोऑर्डिनेट है ना, ये आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 5 हो, अगर जेड में जाएंगे तो ये आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। ये जो कोऑर्डिनेट है, so these are the coordinate systems to ठीक है। use. Okay. यस सर। ओके सर। So what is this fxi and fyj, ये क्या है। कार्टिशियन सर। या कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म कार्टिशियन। वी राइट, जो है ना रिजल्टेंट फोर्स है आपकी f, ठीक है ना। इसको fx कंपोनेंट है, ओके, और fy कंपोनेंट है। जो इसका x कंपोनेंट है वो i में हम लिखेंगे, इसको y कंपोनेंट j में लिखेंगे। ओके। अगर इसका z कंपोनेंट होता तो फिर क्या करते, यस सर जेड के z k करते, ठीक है ना। ओके ओके ये सर अगर z एक्सिस होता तो, यस ओके। सर। ये 2 डायमेंशनल एक्स एंड वाई में है, तो इस वजह से हमने सिर्फ वाई और जे लिखा है इधर, ठीक है। तो ये फिर जो डायरेक्शन जो है ना, ये आपका यहाँ पे पॉजिटिव है ना, ये एक्सिस से जो ना इस तरफ है पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। और ये एक्सिस से जो अवे है ना, ये पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव होता तो उसको क्या करते हैं हम, माइनस नेगेटिव होता तो हम क्या करते, माइनस एफ वाई, ठीक है ना। ये हमने यहाँ पे ये नेगेटिव लिया है ये ना, ठीक है। ये वाई एक्सिस आपका ये है, ठीक है। यस सर। हमने इसके अपोजिट में फोर्स लिए तो माइनस कर दिया इसको, ठीक है। सो जो भी यस आपका सर। जो डायरेक्शन होगा फोर्स का, वो हम जो ओरिजिन से बाहर होगा तो हम पॉजिटिव लेंगे, अगर टुवर्ड्स ओरिजिन होगा तो हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है। Like this, okay.
अगर ये आपका x एक्स एंड y एक्स एंड z एक्स है ना, ठीक है, तो आपका जो अगर ये अगर हमारी फोर्स यहाँ पे है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव नेगेटिव सर। होगा। सर नेगेटिव नेगेटिव होगा नेगेटिव होगा। क्योंकि अपोजिट है सर। अगर नेगेटिव। अगर फोर्स आपकी ये पॉजिटिव इस तरफ है तो क्या होगा? ये पॉजिटिव है सर, ये पॉजिटिव है, ठीक है ना। पॉजिटिव। पॉजिटिव है सर, ये पॉजिटिव। अगर ये इस तरफ हो तो फिर डाउनवर्ड हो तो ये नेगेटिव 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 नेगेटिव। नेगेटिव। अगर नेगेटिव। ये इस तरफ हो तो नेगेटिव होगा। ये जो जेड पॉजिटिव। डायरेक्शन इसके नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ठीक है। अगर इस तरफ होगा तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। यस सर। नेगेटिव बता दो। ओके, सो ये तो वो हो गया ना, 2 वेक्टर्स हो गया। अगर हमारे पास 3 वेक्टर्स हों तो फिर क्या करेंगे? हमारे पास F1 वेक्टर है, ये F2 वेक्टर है और F3 वेक्टर है, ठीक है ना। ये इसकी ओरिजिन है, यस ठीक सर। है। ये x एक्सिस है और y एक्सिस नो है, ठीक आइडिया। है। नो आइडिया, ठीक है। सो F1 को हम रिजॉल्व करेंगे x एंड y कंपोनेंट में, ठीक है। F1 को F1x करेंगे, F1y करेंगे, ठीक है। और F2 ओके को सर। भी जो है ना F2x करेंगे और F2y करेंगे, ठीक है। और F3 को ओके भी सर। F3x करेंगे और F3y करेंगे, ठीक है। तो ये F1 ठीक आ है गया सर। आपका ओके। यस सर। कंपोनेंट, F2 आ गया कंपोनेंट और F3 आ गया कंपोनेंट, ओके। सो टोटल F क्या यस होगा सर। आपका? ओके सर। 4x। टोटल F थ्री। होगा जो 4। x कंपोनेंट आपके जितने ना, F1x प्लस 3 3। F2x 6 होंगे ना, प्लस F3। प्लस यस सर। F3x, प्लस ओके। ओके सर। F3x, ओके। ये तो x कंपोनेंट आ गया आपके, ओके। प्लस F1y प्लस F2y प्लस F3y, ठीक है ना, व्हाटएवर, ओके। सो तीनों को ये फोर्सेस हम ऐड करेंगे और ये आपका रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा, ठीक है। सो किस तरह हम ऐड करेंगे? पहले इसको रिजॉल्व करेंगे अपने कंपोनेंट्स में x एंड y में, ठीक है ना। दूसरा स्टेप में क्या होगा, हम x कंपोनेंट ऐड करेंगे और y कंपोनेंट ऐड करेंगे, ठीक है ना। एंड फाइनली हम इसका मैग्नीट्यूड एंड एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर वो फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड का क्या होता है? लॉगिन। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? अगर ये f इज fxi प्लस इंडिकेट द fyj तो नंबर इसका सर। मैग्नीट्यूड क्या होगा? क्या सर? मैग्नीट्यूड। अगर ये सर। f1x f1y है सर व्हाट? यस सर। पिनट। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका? सर अंडर रूट स्क्वायर होगा नहीं, अंडर रूट में। यस यस, गुड। f इज इक्वल टू अंडर रूट fx एफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। या fx आयोटा स्क्वायर प्लस fy यस j जे स्क्वायर स्क्वायर। एंड स्क्वायर रूट, ओके। तो ये आपका मैग्नीट्यूड एंड रिजल्टेंट होगा, ठीक है ना। जो भी आंसर आएगा ये आपका मैग्नीट्यूड होगा, ये इस फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है ना। यस सर। तो ये जो सर तीसरा एक्स स्टेप और है यहाँ वाई पे, परपेंडिकुलर होते हैं। जी परपेंडिकुलर, जिस तरह हिपोटेन्यूज होता है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ जो लेंथ होगी आपकी हिपोटेन्यूज की, वो जो है ना आपका मैग्नीट्यूड होता है ना, ठीक है। दोनों 90 डिग्री पे होते हैं। हाँ 90 डिग्री जो आपका जो रेक्टेंगल है ना, जो ट्रायंगल है आपका, ठीक है ना। तो ट्रायंगल ओके का जो हिपोटेन्यूज थ्योरम होता है ना, यस। तो ये जैसा ये a है, ठीक है ना, ये b है, ये c है, ओके। c विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना हाइपोटेन्यूज थ्योरम। बी स्क्वायर। हाँ, ए ये बी है, ये सेम है जो इसका फोर्स ए है, ये फोर्स बी है, तो इसका ये जो रिजल्टेंट एफ है, तो ये आपका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज स्टेप ओके 3। सर। तो ये जो नाम मैग्नीट्यूड एंड एंगल हम किस तरह इसकी कैलकुलेट करेंगे रिजल्टेंट वेक्टर की। ये एफ एक्स आई है, एफ वाई जे है ना, तो टेंजेंट थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर 90 degree. 90 degree. Okay, so tangent theta will be, this will be fy Yes, square sir. divided by fx square. Okay, tangent inverse Yes, sir. ओके fy divided by fx. Okay, so this will be your theta, ये थीटा हो जाएगा। Yes, sir. So this is the angle हो जाएगी आपकी ना, angle. Okay, Yes, sir. so here we use a resultant force F1 plus F2 plus F3, F1, F2 and F3 तीनों को ऐड कर दिया ना, F1 plus F2 plus F3, F1, F2 and F3 तीनों को ऐड कर दिया ना। फर्दर इसको कंपोनेंट में हमने रिजॉल्व कर दिया, F1x, F1y, F2x, okay, because this is negative, okay, this is negative, right, this is positive, and this is F3 is negative or positive, F3x will be positive, F3y will be Positive, sir. negative downward. Okay, so f1x is positive, f1y is positive, then minus f2x is negative here, f2y is positive here. Okay, j plus Sir, f3x, composition of vector भी होता है। हाँ वेक्टर, ये वेक्टर है ना सर, जो these are the vectors. Okay, f1x, f1, f2, f3, the vectors, and their components can are f1x, Okay. f1y, and f2x, f2y, f3x, f3y. These are the components. Okay, and then in I we can separate in I and J. Okay, so this is IJ, then resultant forces, then we have I and J. ठीक है, and how can Okay, we sir. calculate the theta? So the resultant Tan force we inverse have, F. yes, the resultant force है, ठीक है ना, ये x component है, ये y component है, ठीक है, this is theta. So tangent inverse FRY divided by FRX. Okay, and this is the magnitude. FR is FR square plus FRY square. ठीक है? So this is the magnitude and angle of the resultant force. Okay, so ये जो हमने डिस्कस किया है ना, जो इसकी थ्योरी थी, ये एग्जांपल है इसका, ठीक है ना। सो इस एग्जांपल में आपको तीन फोर्सेस हैं, F2 है, F1 है और F3 है, ठीक है। जो F2 फोर्स है ये 45 डिग्री एंगल है, ठीक है ना। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक है। व्हाट डज इट मीन 3 4 5? ये आपने पढ़ा होगा ना उसमें ट्रिग्नोमेट्री में, उसमें मैथमेटिक्स में, इसकी क्या मीनिंग है? सो इसका जो x का जो 3 4 ये ट्रायंगल है ना, 3 4 5, ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ठीक है ना। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 4, Yes, sir. और जो बेस है ना ये 3 है, ठीक है। इसकी ये मीनिंग होती है ना। So 3 plus 3 square plus 4 square, and the square root is how much? How much? And Is it 5? 25, sir. 25, ठीक है। 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा? Yes, sir. 20. 5, sir. 5. 5। तो ये जो डिस्टेंस है ना आपका 5 हाइपोटेन्यूज है, ठीक है ना। 3 इसका बेस है और 4 इसका वर्टिकल परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। सो द 3 कॉन्करेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन ओके, ये कोई हुक है या कोई टेंट है, ओके, उसको जो है ना 3 फोर्सेस जो है ना इसमें Okay, sir. से को सपोर्ट कर रहे हैं हम इसको, ठीक है ना।
तो हमने क्या करना है, ये हाउ वी कैन प्लान अवर टू सॉल्व द एग्जांपल को हम जो प्रॉब्लम है किसको कैसे सॉल्व करते हैं। हमने स्लाइड चैप्टर 1 में हमने एक आईपी हमने डिस्कस किया था। ओके, व्हाट इज आईपी? चैप्टर 1 में हमने आईपी कुछ डिस्कस किया था, यू नो, आई फॉर यस सर, आईपी पढ़ा। इंटरनेशनल इंटरप्रेट मींस प्लान सर, interpret means understand. I for interpret means understand the problem. इंटरप्रेट जो आपको प्लान understanding means we can जो आपको जो एग्जांपल दी हुई है आपने अंडरस्टैंड करना है कि ये फोर्सेस हैं, ये ओरिजिन है, और ये सारा आपको जो है ना अंडरस्टैंड करना है कि ये क्या फोर्सेस हैं, ठीक है ना। देन प्लान मींस how can we solve this? Okay, this is the plan. First we can make components of the forces. Second we can add the components. First उसको add करेंगे and finally we can magnitude और angle जो है ना उसकी calculate करेंगे। 3 steps इसको plan हमने किए हैं। Execute means calculations. Okay, further we can calculate. Okay, okay, so what will be the first step of and we can second step means plan. Okay, in the plan we need to calculate the components. Okay, what will be the f1? This is f1. Okay, what is the x component of f1? 0. Okay, and the y component is 300. Okay, जीरो so this is f1. Okay, 300 and what is f2? minus F2, 450 cos yeah, x 45 component. This is x component. Okay, because this is a minus. Okay, this is f of f2x. Okay, and f2y. Okay, so this is for the f2. Okay, so f2x will be minus 450 cos of 45. Okay, y, and the y component will be Yes, sir. Okay. minus Sir, 450 please sin of repeat this 45j. from Okay, F1. so if you Sir? multiply this, yes, Sir, repeat this please. Hello. Sir, repeat कर sir. okay, Sir, F1 से repeat करो. okay, okay. Once again, sir. Hello. Okay, okay. So in this figure, इस फिगर में f1 कौन सा है? ओके, ये f1 कंपोनेंट ये है ना, f1, ठीक है ना, ये f1 है, ठीक है। तो f1 में क्या है हमारा, एक सिर्फ वर्टिकल फोर्स है 300 न्यूटन, ठीक है ना। किस डायरेक्शन में? सिर्फ वर्टिकल फोर्स है 300 न्यूटन, ठीक है ना। किस डायरेक्शन में? ये x में या y में? Y axis में सर. y में है ना, Y सर axis. वाई पे Y sir. y पे है ना। Y में. पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव Positive. Positive में ठीक सर. है ना। Negative तो sir. y की में क्या होता है, j होता है ना, ठीक है। तो सिर्फ हमने 300 j यहाँ पे Yes, लिख sir. दिया, ठीक है। सिर्फ y में j ये आ गया, ठीक है। ये f1 हो गया, ठीक है। f2 में हमारा क्या है, 450 है, ठीक है। F2. 450 quantity. f2 है, ठीक है। सर इसमें ये हमारे माइनस दो कैसे कंपोनेंट हुआ आते हैं F2? ना, एक x कंपोनेंट है और दूसरा y कंपोनेंट है, ठीक है। f1 में क्या था हमारा, x कंपोनेंट ये क्या है, 0 है, ठीक है ना। क्योंकि Yes, डायरेक्टली sir. ये y कंपोनेंट में तो f ये x में हमारा 0 था, इस वजह से हमने 0 यहाँ लिख दिया था ना, ठीक है। बट f2 में जो है ना हमारा जो है ना x कंपोनेंट भी है और y कंपोनेंट भी है, ठीक है। तो
और x कंपोनेंट जो है ना 45 डिग्री पे, और y कंपोनेंट जो है ना ये भी 45 डिग्री पे, ठीक है ना। तो इसका x कंपोनेंट fx क्या होगा, f2 cos ऑफ 45, ठीक है ना। इसका डायरेक्शन ये प्लस है या माइनस है, ये यस डेटा है माइनस है माइनस है ना, ठीक है। तो माइनस 450 सर cos ये ऑफ सर 45 माइनस है। ठीक है। और Yes, y sir. कंपोनेंट ये प्लस में है या माइनस में है, सर प्लस ये में सर पॉजिटिव में ये होगा, प्लस में है, क्योंकि ठीक है ना। हमारा जो प्लस y एक्सिस है 450 साइन ऑफ 45, यस ये जो दूसरा कंपोनेंट हमेशा हम वो लेते हैं ना, साइन ऑफ 45 लेते हैं, ठीक है। और ये j हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। I प्लस j 318.2 I प्लस 318.2 j, ठीक है। और ये इसका F3 में क्या यस करेंगे, सर ये हमें कैसे पता चला कि cos है यहाँ पर, और उस जगह पर हमने साइन लिए और इधर cos लिए सर, डिफरेंट एक एक चीज में सर cos लिए। ये गुड क्वेश्चन। नॉर्मली जो बेस होता है ना हमारा बेस, एक्स कंपोनेंट यस ये सर। थीटा गिवन है ना हमारे पास, जो बेस होगा हम इसको कोसाइन से करते हैं ना। एफ ये बेस है ना हमारा, बेस वाली फोर्स जो है ना ये जी कोसाइन सर। होती है, ठीक है। तो ये जो अपोजिट पे जो ये कुछ ये जो है ना 45 ये वाली है आपकी, ये साइन होगी, ठीक है ना, ये साइन होगी, रिपीट रिपीट। ठीक है। ये जो है ना वो जो है ये अगर ये फोर्स है ना F, ये हम एक्स कंपोनेंट लेना है तो ये हमारी थीटा है ना, ठीक है। तो ये cos ऑफ 45 होगा, ठीक है। इसका जो y कंपोनेंट है F2y, ये साइन ऑफ 45, ये अपोजिट वाला ले रहे हैं, ठीक है ना, ये थीटा है इसका, ठीक है। तो इस वजह से हमने बेस वाला cos हमने ले यस लिया सर। और अपोजिट वाला साइन ले लिया हमने, ठीक है। सर ये समझ नहीं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक की जो फंक्शन है ना, सर इसका जो ये कॉस थीटा और साइन थीटा का कॉन्सेप्ट इनको अलग से किसी वाइट पेज पे जो है ना समझाएं, क्योंकि ये समझ नहीं आ रहा है इनको कि कॉस क्यों लगा है और साइन क्यों लगा है। हाँ cos हमेशा जो बेस पे जो है ना आप cos जो है ना 45 करते हैं ना, इसको जो फोर्सेस है, ठीक है। चलो ये बेटा जो नमाज आपको की जो तैयारी कर। डिग्री ये एंगल दी है ना आपको, ये यहाँ पे जो ये जो बेस है, ठीक है ना, ये वाली 45 डिग्री दी है आपको, ठीक है ना, ये थीटा है, ठीक है। अभी जो इसका y कंपोनेंट है, y कंपोनेंट कैसे होगा इसका, ये वाला होगा, ठीक है ना। तो इसमें हमने जो है ना इसकी ये जो थीटा है ना इसका हम ये वाला जो एंगल है हम पता नहीं है, इसको अपोजिट में लेंगे तो उसकी जो है ना साइन हम लेते हैं ना। ये बेस वाली जो है ना बेस के साथ जो एंगल है हम कॉस लेते हैं, ठीक है। और जिसके अपोजिट है इसको हम साइन करते हैं, ठीक है। तो फर्दर आगे जो है ना इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, फिर समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। एंड F3 में हम क्या करेंगे, ओके F3 सर 3/5 का मतलब है सर बेस अपान परपेंडिकुलर या 3/5 हाइपोटेन्यूज। का मतलब है x कंपोनेंट, ओके। एंड 4/5 का मतलब है y कंपोनेंट, राइट। F3 हियर, ओके। परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज सर। हाँ हाँ, ये x है ना आपका, ठीक है। तो x में क्या है, ये 3 है, x में है, ठीक है ना। यस सर। तो 3/5 हमने x कंपोनेंट ले लिया, और y में हमने क्या ले लिया, 4/5, ओके, y कंपोनेंट, ठीक है। यस तो इसको इस तरह करेंगे, अगर 3/5 मल्टीप्लाई बाय 600 करेंगे तो ये 360 आई हो जाएगा, ये 480 जे हो जाएगा, ठीक है। सो हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम, जो आप पढ़ाएं। नहीं नेक्स्ट जो इसमें हमने प्लान किया है ना, नेक्स्ट स्टेप कौन सा प्लान किया है हमने, फर्स्ट स्टेप में क्या किया, हम रिजॉल्व द फोर्सेस इनटू एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स, ओके।
नेक्स्ट में क्या करेंगे, एड द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स टू गेट द रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, ऐड तो द बी, करके ओके, अभी हमने जो ये यस कैलकुलेशन किए ना F1 F2 F3, इसको हम फर्दर ऐड करेंगे ना, ये आई को आई के साथ ऐड करेंगे, ठीक है ना, और जे को जे के साथ ऐड जे के करेंगे, साथ। ठीक है। तो सर ये तो F3 इसको जो कैसे ना हमने किए फर्दर समझा ऐड देते। कर दिया, इसको आई को आई के साथ कर दिया और जे को जे के साथ कर दिया, ठीक हेलो है। चलो जी जी बोले, हेलो सर, जी जी ये बोले, F3 तो समझा दे कैसे किया था आपने पीछे। कौन सा? F3, हाँ F3, ये F3 ओके ओके। भले ओके F3 सक्रेन बकवास हो ही है, ये है ना F3, ठीक है, ये हमारा F3 है, ठीक है। और F3 की जो हमारे पास जो इसमें डायमेंशन है यहाँ, वो उसकी जो है दी हैं, इसमें एंगल्स वगैरह दिए 3 4 5 दिए, ठीक है। तो ये इसका 4 है और ये जो है ना इसका 3 है, ठीक है। यस सर और ये जो है ना इसका 3 है, ठीक है। यस सर ये हमारी फोर्स है F3। तो इसका x कंपोनेंट क्या होगा, F3 मल्टीप्लाई बाय x कंपोनेंट में क्या होगा, ये है ना बेस है ना 3 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। इसका y कंपोनेंट क्या होगा, वो देख F3 4 डिवाइडेड बाय 5, ओके। 5/3 600 जूल। ये 3/5 फॉर x कंपोनेंट, 5 फॉर द y कंपोनेंट, ठीक है, ठीक है। सो देन वी एड ऑल द, जो है ना अब आई और जे में जो ना हम ऐड कर देंगे, ठीक है। एंड देन तो इसका ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ गया ना, रिजल्टेंट फोर्स थैंक यू सर, थैंक यू 41.80 आई और देन 98, रिपीट सर रिपीट। ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे थैंक यू कैलकुलेट सर। करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है ना, सर इसका सर रिपीट हाँ सर, पहली क्लास खत्म कर दें। 41.8 स्क्वायर प्लस 1098 स्क्वायर, ओके। तो ये 1099 न्यूटन हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी, ठीक है। क्लास खत्म कर दें। और फी जो एंगल है इसकी क्या आ जाएगी हमारे पास, टेंजेंट इनवर्स 1098 डिवाइडेड बाय 41.8, ठीक है ना, Fy डिवाइडेड बाय Fx, ओके। ना पड़ा जो तो आपकी जो ये एंगल है हमारी ये 87.8 आ जाएगी, ठीक है। सर ये एंगल वाला बताना। ये नहीं चल एंगल ये जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स है ना, रिजल्टेंट फोर्स का x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट है, ठीक है ना। तो फी जो है या एंगल थीटा जो है ये आपका क्या होगा, टेंजेंट इनवर्स Fy डिवाइडेड बाय Fx, ठीक है ना। तो Fy हमारा क्या है 1098, Fx है 41.80, ओके। तो ये हमारा एंगल आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये दूसरा एग्जांपल है ओके सर। इसमें ना, ठीक है सर समझ आ गया। हमें ये एक फोर्स है सर बस हमारी आज यहाँ के पे, लिए काफी है, अगली क्लास नो पाँच बजे साढ़े हेलो क्लास ओके करते हैं, सर मेहरबानी बस ये करें। कंप्लीट है, हमने थोड़ा हेलो सा बस एग्जांपल थैंक यू में सर। करके ना थैंक यू थोड़ा सा रह गया है, सर। ठीक है। सर बस क्लास तो खत्म ये कर दें आज। 30 पाउंड फोर्स है, ये इसका यू कंपोनेंट है और ये वाई कंपोनेंट है ना, ये पाइप है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट इसके जो ना हेलो सर, कंपोनेंट ऑफ सर फोर्स हमने क्लास खत्म कर करने दें, हैं, थक ठीक गए। है, पैरेललोग्राम लॉ से। देन हेलो फोर्सेस को हमने रिजॉल्व करना है, देन हमने फाइनली मैग्नीट्यूड इसका कैलकुलेट करना है, ठीक है। हेलो हेलो जी जी, सर क्लास खत्म कर दें, नहीं अभी समझ आ टाइम रहा। तो है ओके ना, ओके। अभी 20 मिनट और रहते हैं ना। तो इंशाल्लाह वी विल कंप्लीट दिस हेलो लेक्चर। सर, 8 स्लाइड, वाइंड अप करें, वाइंड अप पानी करें, वानी पी के हैं, हम थक गए। 8 स्लाइड्स हैं, ठीक है। वाइंड अप करें।
हाँ भाई 8 स्लाइड्स हैं, ठीक है। तो ये जो ना आपका ये हमारे फोर्स है, ठीक है ना। तो इसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट क्या होगा? हम यूजिंग द पैरेललोग्राम लॉ वी यूज द ये इसका यू कंपोनेंट है और वी कंपोनेंट है, वी एक्सिस में और यू एक्सिस में, ठीक है। तो ये हमारी जो एंगल है, ठीक है ना, 30 डिग्री हमने दी हुई है ना। देन this is 45 degree and then we have 105 degree, okay. हेलो सर। Yes, sir. हेलो। Then hello जी then we can इसके जो कंपोनेंट्स है ना, हम एफ यू एंड एफ वी, ये हम जो है ना साइन लॉ से हम हेलो। कैलकुलेट करेंगे। साइन लॉ, ये अगर आपका ट्रायंगल है, ठीक है ना, तो ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए, बी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ बी, सी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ सी। तो इससे जो है ना हमने अपने कंपोनेंट कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो एफ यू जो है ना आपका 30 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 105। एक्सक्यूज मी सर, क्वेश्चन है। जी क्वेश्चन हाँ सर बोले समझ ही नहीं आ रही। रिपीट सर। हेलो सर। ओके। क्या नहीं समझ में आ रही? सर ये ओके, ये प्रॉब्लम नंबर 1 था जो सर हाँ वेट सर सर कुछ भी नहीं समझ आ सर रहा। एग्जांपल 2 समझ में नहीं आया। सर कुछ भी नहीं समझ आ रहा। सर एग्जाम्पल 2 समझ में नहीं आया, प्लीज उसको थोड़ा रिव्यू करवा दें दोबारा, लेकिन उर्दू में। हेलो सर। हेलो हाँ जी सर। बोले। ये प्रॉब्लम नंबर जो 1 था, इसमें जो रिजल्टेंट मालूम किया है हमने, कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 1 हमें पढ़ाना चाहिए। अरे गाना सुनाओ। हाँ अल्लाह क्या सर एक गाना सुनाओ। सर, उसका रिजल्टेंट के बाद आप मेहरबानी करें, हमें आपकी समझ आ ही नहीं रही, काट दिया छोड़ दे। ये सेफ इंजीनियर सेफ नहीं है इधर, सेफ किधर है? वेयर इज लेक्चरर सेफ? सर आप सॉन्ग सुनना चाहेंगे? हमें आपकी समझ ही नहीं आ रही। सर सेफ हेलो लेक्चरर सेफ नहीं है? हाँ जी बोले। सर ये बच्चे को क्वेश्चन था पिछले हाँ एग्जाम्पल से। हाँ पूछें। साइलेंस बेटा। सर कौन से प्रीवियस स्लाइड में जो हाँ एक नेक्स्ट करें। हाँ सर, ये रिजल्टेंट मालूम करने के बाद हमने क्या किया है? इसका ये जो एंगल है ना वो हमने मालूम सर किया है। काइंडली मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें ऑनलाइन क्लास में समझ नहीं आ रही। नहीं, क्या नहीं समझ में क्या आ रहा? करूँ बात? लेक्चरर सेफ नहीं है, उससे पूछ लेना कि जो समझ में नहीं आ रहा वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे। क्या कोई चीज लेक्चरर समझ नहीं आ मालूम रहा। करने के बाद हम हाँ सेफ नहीं है इधर। इसमें कौन सी चीज समझ में नहीं आ रही? प्लीज पूछें, आप पूछ सकते हैं ना। क्लास चलाओ सर। ऑनलाइन समझ नहीं आ रहा सर। ऑनलाइन नहीं, किसी क्या नहीं बच्चे को समझ? समझ नहीं आ रहा बच्चा सर। सवाल ये कर रहा है कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वाला जो है ना एफ आर, ये स्टेप समझ नहीं आ रहा, ये कैसे होगा? रिपीट करें। कुछ समझ नहीं आया। तो मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, ये जो है ना आपका रिजल्टेंट फोर्स है ना, रिजल्टेंट फोर्स है, ठीक है। इसका जो एक्स कंपोनेंट है क्या होगा? एफ आर एक्स है ना, और वाई कंपोनेंट एफ आर वाई है, ठीक है। तो इसका एफ आर क्या होगा? एफ आर एक्स स्क्वायर प्लस एफ आर वाई स्क्वायर, ठीक है, और स्क्वायर रूट इसका, ठीक है। तो ये जो है ना इसका रिजल्टेंट फोर्स है, ठीक है। तो ये हमने जो है ना ये यहाँ पे ये किया है ना हमने, ये एफ आर एक्स है, ठीक है, और ये एफ आर वाई है, ठीक है। क्लियर? क्लियर? क्लियर?
ठीक है सर। ये यस सर क्लियर। तो ये थीटा क्या होगा इसका? व्हाट इज टेंजेंट थीटा? टेंजेंट थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है ना? बेस बेस होता है टेन सर। 99 कैसे आया? टेंजेंट इनवर्स विल बी परपेंडिकुलर ओवर बेस। ओके, यस सर। तो यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे ना? एफ आर वाई है ना, ठीक है। और बेस क्या है हमारा? 41.80 41.80, ठीक है। 41 ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा रिजल्टेंट हो गया, ठीक है। क्लियर? यस सर। नो सर आपकी वीडियो नहीं आ ओके, रही सो अभी। दिस इज अनदर एग्जांपल। ओके, सो दिस इज ये जो ना पाइप के लिए, ओके पाइप सर। अगर हो तो उसमें पाइप में जो फोर्सेस हैं, इंजीनियर सेफ इज हियर। आर यू हियर मी? इंजीनियर सेफ ओके सर। कहाँ पे? इंजीनियर सेफ, यस सर। कैन यू हियर मी? वेयर इज इंजीनियर सेफ? यस सर। यस इंजीनियर सेफ कहाँ पर है? अल्लाह हाफिज सर। वेयर इज इंजीनियर सेफ इज हियर? यस सर, इंजीनियर सेफ इज टॉकिंग टू यू। यस सर सर ये सर स्टूडेंट अल्लाह को हाफिज। कोई यस क्वेश्चन है तो आप इनको एक्सप्लेन करें ना कि कैसे करेंगे। इनको ऑनलाइन अगर नहीं आ रहा तो इंडिविजुअल स्टूडेंट के पास आप जाके इनको एक्सप्लेन करें ना। किसको नहीं समझ में आ रहा तो आप उनको पूछें कि क्या रिपीट नहीं कर समझ में आ रहा। इंजीनियर सेफ से मेरी बात हो रही है सर। ना? जी जी कुछ नहीं है। वेयर इज इंजीनियर सेफ? इंजीनियर सेफ है? जी जी सर, बात कर रहा हूँ। बात कर रहे हैं ना, तो आप जो स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो आप उनको एक्सप्लेन करें ना कि अगर नहीं आ रहा तो इसको, आपको तो समझ में आ रहा है ना। जी जी तो अगर किसी स्टूडेंट को नहीं आ रहा सर, तो आप उनसे आप, कंटिन्यू कर रहे हैं ना, तो क्योंकि यहाँ पे ठीक है ना, बोर्ड अगर मौजूद कोई नहीं है तो सर आप ही एक्सप्लेन डाल दो। नहीं बोर्ड मौजूद नहीं है तो स्टूडेंट के पेपर पे आप जाके जिसको क्वेश्चन है आप उनको एक्सप्लेन करें ना कि क्या नहीं समझ में आ रहा, ठीक है ना। अगर कोई और क्वेश्चन है तो जी जी मुझसे सर। पूछ लें, ठीक है ना को, जी जी क्योंकि जी जी फिर उनको आप एक्सप्लेन करें जो छोटी छोटी चीजें ना, क्योंकि सारे स्टूडेंट को तो कुछ पीछे बैठे हैं, कुछ को आ रहा होगा, कुछ वो है, ठीक है ना। तो जिसको समझ में नहीं आ रहा फर्दर आप इंजीनियर सेफ से जो ना वो डिटेल में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सर आप ओके, जो पढ़ाते हैं ना वो आप आधा घंटा क्लास में खत्म कर दिया करें, ताकि आधा घंटा जो बच जाए उसमें सर हमें दोबारा रिव्यू करवा कुछ दिया नहीं करें है जो आपने समझ हमें में। पढ़ाया हो, क्योंकि लाइव क्लास में, ऑनलाइन क्लास में और फिजिकल क्लास में बहुत डिफरेंस होता है। हाँ वो तो होता है, मगर आपको जो ये सही कह रहे उसमें लेक्चर सही में कह रहे टाइम है, टाइम है या दूसरा टाइम है, आप उसमें जो ना वो टाइम तो है आपके पास, वो कर लिया करें, ठीक है। चलें ऐसे एग्जांपल हम नेक्स्ट टाइम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, इसको रहने दें। ओके तो बेटा व्हाट विल बी द, जजाक। थैंक यू सर। नो ये इसका एग्जांपल देना, कैन यू रिजॉल्व 2D वेक्टर along two direction which are not at 90 degree in each other? नो सर, यस सर। यस यूनिकली। यस यस सर। सर। यस सर, यस सर। ठीक है, तो ये अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो यू कैन रेफर द बुक, आप बुक को भी रेफर कर सकते हैं, ठीक है। सारा समझ में आ गया। नो सर। सारा समझ में आ गया सर। शुक्र। इसमें क्या आंसर होगा? नो सर। इस पे सी होगा। सी होगा सर। सर सी है इस पे भी। बी होगा। सी इज करेक्ट आंसर। ABC। सारा समझ में आ गया सी सर। आंसर सर। सारा समझ में आ गया। करवाएं, करवा करके बी तो दो। सर। सर सी होगा इसका। बी होगा ना। यस ये A is यूनिकली। correct, right? Okay, so the next is what? Yes.
माइक टेक्सटिंग। हेलो हेलो। ये आपका जो ना वो आपका होमवर्क, ये आपका जो ना वो है, वो आप घर पे इसको असाइनमेंट। पढ़, असाइनमेंट है, ठीक है। असाइनमेंट। हाँ, ये असाइनमेंट है, या वो ओके सर। आपको घर पे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वो व्हाट सर विल बी द आंसर आजान फॉर दिस, इसका आंसर क्या होगा? हेलो टेस्टिंग। ये फोर्स है ना, एंड एक्स एंड वाई एक्सिस राइट इन वेक्टर फॉर्म। आजान वेक्टर हो रही फॉर्म में है। हम क्या करेंगे, कौन सा सही है, ए बी सी डी, व्हिच वन इज करेक्ट? सी। सी सर। सर बी होगा। सर सी, आई थिंक सी सर इज राइट। सी इज राइट, राइट? Yeah. Yeah, this is 80 sine of 30. Okay, this is x sine component, भाई ये and कैसे होगा, minus पहले इसको 80 करके बताइएगा। cos of 30j. Okay, यस इसका सर। x component ये सर होगा इसे थोड़ा और y एक्सप्लेन कीजिए। component ये होगा ना, ठीक है। तो यस 80 सर, सी करेक्ट y आंसर। component will be cos of 30. Okay, this is minus cos of 30j, and x component will be 80 sine of 30i. Okay, for I. Okay, and then determine the magnitude of the resultant force in Newton. इसका रिजल्टेंट क्या होगा? बी सर। सर बी 40 न्यूटन सर 40 40 सी How? 10 plus 20 is how much? 30, right? यस सर। 30i plus 20 plus 20 is 40j, right? 70 सर So what? 70 सर 70 ना Uh, 90 plus 70 हो गया सर। 70? Which one is correct? सर ये कैसे होगा? Hmm? So 30 square root, 30 square सी plus सी इज राइट सी होगा 40 square सी होगा square root. ये क्या है, इसका आंसर क्या आएगा? सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट सर। C is correct, सत्तर right? बाहर जाओ Okay, so we will stop here. We will continue the next chapter. Okay. So मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए हैं ना, ये आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, सर। और कोई क्वेश्चन हो तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो इंजीनियर सेफ से आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो मैं स्लाइड्स एडवांस में अपलोड करता हूँ ना, तो आप कुछ एडवांस में इसको देख लिया करें ना लेक्चर से पहले, ठीक है। या जो डन लेक्चर सर के मैंने दौरान आप लेकर आया करें, क्योंकि आपके पास स्लाइड्स है ना, नहीं है? स्लाइड्स वगैरह जो है ना आप प्रिंट कर लिया करें ना, स्लाइड्स वगैरह। तो आपके पास कितने लोगों ने स्लाइड्स प्रिंट किए हैं? किसी ने नहीं सर, किसी ने नहीं, मैंने की है किसी सर ने नहीं की। किसी ने नहीं। जब आप कुछ मटेरियल लेकर नहीं आएंगे क्लास में तो कैसे समझ में आएगा, ठीक है ना। तो बुक वगैरह या क्वेश्चन नंबर जो 3 का है आंसर लेक्चर बताएं। स्लाइड्स वगैरह, वो नेक्स्ट जब क्लास हो ना तो आप लेकर आया करें, ठीक है। वक्त तुम अभी आए हो नींद आ रही है। तो ये लेक्चर सर स्लाइड्स ठीक और है सर, ये थैंक यू जो है हमारी कम से कम लेक्चर स्लाइड्स आप लेकर आया करें ना, उसमें अपने जो मैं नोट्स इसमें आपको जो कुछ क्वेश्चन वगैरह एक्सप्लेन करता हूँ तो आप उसमें एक्सप्लेन किया करें खुद भी, ठीक है। बताओ से ओके सर। थैंक यू सर। अब ओके हमारी नेक्स्ट क्लास भी है। ओके ओके, थैंक यू। बताओ पिक्स निकालो कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है।